Okay, now everyone, please. I think some students also come here. They also came to join us. Now, everyone, please be vigilant. What I'm explaining you, please be attentive. Walaikum assalam, walaikum assalam. Be attentive and everyone mute your mic by yourself there so that I can give you the explanation very clearly. Okay. Honan, you have to open page number 75. This is chapter number 7, Features of Word 2013. I will explain you through the lecture as well as I will share the screen with you all so that you can easily see the practical as well. Okay. Now please look at this. Word has many useful features that are helpful while creating a document. Let us learn about these features. First is the spelling and grammar. You know what is the spelling and grammar? Whenever we write anything in the word, you have seen some red and green lines on that side. Okay. The red wavy lines and the red wavy lines जो होती है underline होती है, it indicates a misspelled word. जितनी भी आपकी misspellings होती हैं यानी गलत स्पेलिंग आपने लिखी होती है वो आपको पता चलती है रेड वेवी लाइन के थ्रू. और जितनी भी ग्रीन या ब्लू वेवी लाइंस होती है, समटाइम्स ग्रीन होती है, समटाइम्स ब्लू होती है. इट ऑलवेज शो यू द ग्रामर मिस्टेक्स. ओके, हाउ विल यू फाइंड इट? Yes. How will you find it and how will you go and correct it? I'm sharing the screen with you all. Let's see how will we do this. This is, okay. Let me share it with you all. We'll go for the word 2013. Now here I'm writing some paragraph. For example, I'm writing, I am very lazy, right? I have written the word lazy. इन्होंने auto correct कर दिया, but let me write something. I am very embarrassed में ना मैं spelling गलत लिख रही हूँ, right? Right. So have you seen the red wavy line? It means it shows you that the spelling of embarrassed is wrong. Okay, the spelling of embarrassed is wrong. That's why the red wavy line show you the spelling mistakes. How will we go and correct it? We have two options. First, we can also go for the file option and go for the ABC. And then let me go for this one. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे होम पर. ओके, स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रूफ रीडिंग पर आ जाएगा, राइट? वहां पे भी करेक्ट कर सकते हैं. इससे ज्यादा आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ. यू हैव टू फर्स्ट राइट क्लिक ऑन इट. देन यू राइट क्लिक ऑन द स्पेलिंग, सो यू विल हैव क्या पर आ रही है ये बेटा स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को करेक्शन. नहीं मैं चैप्टर 7 पे आ रही हूँ. स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है ना. नो नीड टू टेक. मैं कैसे बोल लूंगा बेटा प्लीज नो नीड टू टेक एनी स्क्रीनशॉट. एवरीवन म्यूट योर माइक. लेट मी म्यूट यू ऑल बिकॉज ऐसे मैं फिर आप लोगों को सबको म्यूट कर दें. Yeah, I think it is necessary to me right now because I have to finish this chapter today. If anybody wants to ask anything, they will raise a hand and then I will unmute you. Now, please again, I'm sharing the screen with you all. We were on the word. So what I have done is, मैं दोबारा Control Z से दिखाती हूँ आपको. What I have done and over here, we have wrote the wrong spelling, and when I right click on it and press on the correct spelling of embarrassed, so it will be corrected and the red line will gone. Okay, अगर मैं यहाँ पे कोई grammatic mistake करती हूँ, he is going to park. Okay, जब मैं ये लिखूंगी ना तो V is going to park is a wrong. तो क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन शो करनी चाहिए. एक मिनट. V लेट मी सी क्या होता है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या करेक्शन हुई भी कि यहाँ पर इन्होंने ग्रीन लाइन शो नहीं की. अदरवाइज ग्रीन या ब्लू लाइन शो होगी बिकॉज वी के साथ हमेशा आर लगता है. सो द करेक्शन ऑफ स्पेलिंग आई थिंक हमारे पास ऑटो सेलेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये खुद से नहीं दे रहा है, राइट? सो लेट मी गो विद दिस फाइंड. एक मिनट, मैं कहीं से आपका एक
पैराग्राफ उठाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को वो शो कर सकूँ. वेट अ मिनट. Let me go for the screenshots and then your. Okay, for example, I'm just selecting this one line over here. ठीक है. ठीक है, यहाँ पर आपकी सब कुछ ठीक आ रहा है, राइट. अगर मैं यहाँ क्रिएट की स्पेलिंग गलत कर देती हूँ, ओ लगा देती हूँ टी के साथ, एंड देन आई विल क्लिक, यू कैन सी दिस रेड लाइन, मीन्स राइट क्लिक करके क्रिएट की स्पेलिंग हमें यहाँ पर ऑप्शन आता है, या तो हमें इग्नोर करना हो, ऐड टू डिक्शनरी करना हो, जो भी यहाँ क्रिएट पे करा, देन इट विल बी करेक्टेड. अगर यहाँ पे हम कोई गलत कर दें, प्लीज अयान एंड एवरीवन स्टॉप एनोटेटिंग. बेटा आप लोग इस तरह तंग करेंगे ना तो फिर हमने कर लिया कोर्स खत्म. और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टाइम कम है, बिकॉज फ्रॉम 18 ऑफ जनवरी योर स्प्रिंग टर्म एग्जाम विल स्टार्ट. Let me disable you all and then fine. So the simple thing is that whenever we write any grammatic mistake, so it will show us with the blue line. Okay, वहां पे हमें blue line show करेगा कि हमने कुछ grammatic mistake की है. एक और ग्रामर लिख के कोशिश करती हूँ मैं आपको समझाने की. I is very intelligent. यहाँ पर हमें ये शो नहीं कर रहा है. ओके, they are not showing us the grammatic mistake. Let me go for this. No, they are not showing us the grammatic mistake in my computer, but whenever you use your computer and you write it by yourself, it shows you the green or the blue line over here. जब भी हम grammatic mistake करेंगे तो यहाँ पर आपके पास green या blue line show होगी. ठीक है, तो हमेशा I के साथ M आता है, तो ये हमारा correct word होगा. ठीक है. Next is stop sharing it. Now come and see the second topic. Okay, let me go for this one. अगर हमें the step to check the spelling and grammar are as follows. Position the cursor at the location where you want to start the spelling. Click on the review tab in the proof group. Click the spelling and grammatic button. Okay, मैं आपको एक और example से बताती हूँ, एक और चीज. We were here. Okay, fine. इसको मैं गलत ही लिखती हूँ इस करके, right? यहाँ पर हमने ये लिखा. What I will go for this, हमने यहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट करा जहाँ पे हमें इसको देखना था. ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद we are going for the review option. Then यहाँ देख रहे हैं प्रूफ रीडिंग पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रूफ रीडिंग का ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर. यू आर गुड टू गो. इन्होंने कहा स्पेलिंग एंड ग्रामर आर करेक्ट, यू आर गुड टू गो. मीन्स यहाँ पर ये हमें करेक्शन करके नहीं दे रहे ग्रामर की. सो हमारे पास अगर गलत स्पेलिंग होगी इंटेलिजेंट की, एक मिनट, अब देखते हैं. देन वी गो फॉर दिस वन. जब भी हमारे पास स्पेलिंग की कोई एरर आ गई, हमने इस पर क्लिक करा तो ये हमें इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है. ये देखिए यहाँ पर ये हमें इंटेलिजेंट की करेक्ट स्पेलिंग दे रहा है, राइट. अगर हमें इग्नोर करना होगा हम यहाँ इग्नोर करेंगे, चेंज करना होगा चेंज कर देंगे. इंटेलिजेंट के सिनोनिम्स भी शो कर रहे हैं. ओके, सो वी आर गोइंग फॉर द चेंज ऑप्शन. तो यहाँ पर आके इन्होंने चेंज कर दिया और ये हमारा ऑलरेडी चेंज हो गया. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. आपको शो कर दिया कि ये कैसे चेंज होगा. सजेशंस के लिए आप जा सकते हैं रिव्यू पर. अगर आपको राइट क्लिक करके स्पेलिंग या ग्रामर करेक्ट नहीं करना तो आपके पास ऑप्शन होता है, जहां भी आपने गलत लिखा हो वहां पे आप क्लिक करेंगे और रिव्यू टैब पर जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा. डिफाइन के लिए भी अगर आपको करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटेलिजेंट पे रखा और डिफाइन पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास पूरा ऑप्शन आ गया. डिक्शनरीज में क्या है, टू यूज डिक्शनरी यू मस्ट साइन इन विद द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. हम यहाँ से साइन इन करेंगे. जब हम यहाँ पे साइन इन करेंगे तो यहाँ पर जिस भी वर्ड को हमने सेलेक्ट किया होगा वहां पर उसकी पूरी डेफिनेशन आ जाएगी डिफाइन पर, राइट. गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is thesaurus. This is same as this is just beside it. The thesaurus tool provide a list of synonyms, that is word which is similar. Okay, I'm on page number 77. The second heading is thesaurus. What is thesaurus? It is a list of synonyms which show the similar meanings.
words that can be replaced within the word, within the one words. What are the steps to use it? ये भी मैं आपको यहाँ पे practically show करती हूँ. Again we are here. When I go for this one, step क्या होता है thesaurus के लिए? Click on the review tab and the proof. दोबारा हम review tab पे जा रहे हैं, proof reading के अंदर. यहाँ पे thesaurus है, right? Whenever we click on the thesaurus, you can see over here. Right पे देखिए thesaurus में हमारे पास intelligent की इतने सारे synonyms आ गए. Right पे दिख रहे हैं आप सबको? You can see the synonyms: brainy, bright, smart, gifted, intelligent, quick, clever, sharp. ये सारे के सारे हमारे पास thesaurus में synonyms आ गए. So the thesaurus is used to select the synonyms. For example, I go for the sharp. तो जैसे ही मैं sharp पे click करूंगी, यहाँ पर आपका intelligent की जगह sharp आ गया, right? तो sharp पे click करके हमने इसको यहाँ पे कर दिया. And then I have the another meaning of intelligent. I'll go for the sharp one. ठीक है, अब मुझे sharp के अगर synonyms चाहिए, मैंने sharp लिख के यहाँ पे thesaurus पे click कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी हैं right click करके उसका आ जाएगा. इसके अलावा हमारे पास second step ये होता है, हमने right click किया, यहाँ पर भी हमारे पास synonyms का option आता है. brainy, bright, smart, gifted, intellectual. अच्छा, मैंने intelligent को intellectual से convert करना है, मैंने यहाँ पे click कर दिया तो intelligent से intellectual पे click हो गया, right? तो जब भी हमें कभी कोई चीज़, जैसे create है, मैंने create को select करा और इस पर राइट क्लिक कर दिया, यहाँ जाके इसके सिनोनिम्स पे क्लिक करा तो हमारे पास ये सारे आ गए. अब मैंने क्रिएट की जगह लिख दिया क्राफ्ट, क्राफ्ट क्लिक कर दिया तो ये क्राफ्ट आ गया, राइट? इस तरह हम शो कर सकते हैं अपने सिनोनिम्स को राइट क्लिक करके भी. और अगर हमें इसकी लिस्ट देखनी हो तो हम रिव्यू टैब पर जाकर स्पेलिंग्स और थिसॉरस के सेक्शंस में क्लिक कर सकते हैं. स्पेलिंग से हमारे पास स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाएगी, सिनोनिम्स के लिए हमारे पास थिसॉरस होता है. सो वी गो फॉर द थिसॉरस ओवर हियर. ओके बेटा, प्लीज wait for a while. I will take your questions. Let me finish with the topics and then I will definitely take your question. Jafar, Hassan Ahmed, write your question on the side and then I'll take your questions. Don't worry. Let me just finish this some important topics and then I'll go for it. Now come on the page number 78. Come on page number 78, everyone. Here we have the change case option. Sometimes after typing the text, you may feel that you should have written the important words in capital letters, uppercase, or some words that are capital letters should have been in lower cases. Word 2013 allow you to change the case of text type of any of the 5 options. You have the 5 options of the change case. What are the 5 options are? I will show you where the 5 options are. Okay, Hamad joined us. Okay, 1 minute. Let me stop sharing with you all and I'm allowing you to mute yourself one by one and then ask the question. I think so many students are confused about so many things and let me ask first. जी बेटा, one by one करके पूछिए, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है. टीचर Yes my dear. टीचर, मैं जब अपना ये माइक का स्पीकर उतार रहा हूँ और उसका पैर निकाल रहा हूँ, टीचर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. बेटा आप स्पीकर को अपने स्पीकर को फुल रखो या फिर अपना जो माइक है ना, आपका जो हेडफोन है उसको लगा के रखो ताकि मेरी आवाज क्लियर आए. ओके, समटाइम्स आपके कंप्यूटर की साउंड स्लो होती है. तो टीचर, आई एम सेइंग दिस कि अगर मैं इसे उतार रहा हूँ तो आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. तो ऑब्वियसली आप इसको उतारेंगे तो आवाज कैसे आएगी बेटा? जब आपका ये कनेक्टेड हुआ हुआ है कंप्यूटर से, आपका हेडफोन कनेक्टेड है कंप्यूटर से, तो आपको बगैर हेडफोन की आवाज कैसे आएगी? एनी क्वेश्चन? अनएबल को कनेक्ट. यस बेटा, अनदर क्वेश्चन. हसन अहमद, कोई टीचर अगर मैं Beta, if you want to ask any question related to the topic, please ask. We don't have so much time, so please let's start with the screen sharing again. Yes. जी. मिस, जो आपको अभी स्क्रीन शेयर कर रही हैं, उस स्क्रीन शेयरिंग में मिस एक प्रॉब्लम हो रही है. आप बार बार एरो इधर उधर कर रही हैं और मिस जब जूम कर रही हूँ आपके एरो पे तो दिख नहीं रहा सही से, और जब जूम आउट कर रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा सही से. अब आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी स्क्रीन शेयरिंग वाली? Can you see that? Okay, now please emphasize on my lecture and please everyone mute your mic by yourselves. I'm not blocking you right here. Everyone mute your mic. Now please over here we are having page number 78. We are having the
topic. In the change case option, we are having the 5 categories of change case. We can see this in the home tab. Go for the home tab. When we click on the home tab, we can go for the change case option. What are the change case option? ये आपके font group के अंदर होते हैं, right? We have the change case options in which we can do 5 changes. ये देख सकते हैं आप. राइट क्लिक करा, ये आपको होम टैब में दिखा. दिस इज द होम टैब एंड इन द फॉन्ट ग्रुप वी गो फॉर द डबल ए ऑप्शन. जैसे ही हम डबल ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ चेंज केस. Whenever we click on the arrow, we have the 5 options over here. Sentence case, lower case, upper case, capitalize each word or toggle case. In the sentence case, your first character will be capitalized and rest are the lower. जैसे हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा सेंटेंस केस चल रहा है, जहाँ हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे हमारे लोअर केसेस में होंगे. When we go for the lower case, जब हम लोअर केस पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी यहाँ पे लिखे हुए होंगे वो सारा लोअर केस में आएगा, including the first word as well. When we go for the upper case, all the written things will become on the upper case option, यानी सब कैपिटलाइज होकर आ जाएगा. ठीक है. Then we go for the capitalize each word. जब भी हम capitalize each word पे जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये लाइन है, I am very embarrassed. So I will be capital, A will be capital, V will be capital, E will be capital. And then we go for the toggle case. So the first letter and the first letter will be the small one and rest of the capital one. Let me show you one by one. For example, I'm selecting this one line and going to change in the lower case. When you go for the lower case, you can see I भी small हो गया, I am very embarrassed आपके पास पूरा का पूरा small में आ गया. ठीक है. I am again selecting this one and go for the upper case option. जब मैंने upper case पे क्लिक किया, ये सारा का सारा कैपिटल हो गया, right? Then I'm again selecting this one and go for the capitalize each word option. You can see this I, A, V, E. ये चारों के चारों words के first letter capital होगा. Then I'm again selecting this one and go for the toggle option. The toggle case, in the toggle case, your first letter will be small and rest of the letters will be capital. Got it? So normally the default setting, and we always prefer on the paragraph, we go for the sentence case in which first letter will be capital and rest of the small. Okay. Now come for the find and replace option. For example, if you go for the find and replace option का क्या purpose होता है? Now please look at this. Sometimes you may need to search for a particular word or text in a document. You may need to replace some words. For example, to find some command you use to locate a specific word and text in the word. Please mute your mic, beta. Please mute your mic. Mariam, please mute your mic. Okay. When we go to find any word, for example, I am going to find a word. What I will go finding text किस तरीके से करेंगे? Click on the home tab. हम home tab पे click करेंगे. In the editing group, you can see in the editing group over here. ठीक है? आपको दिख रहा है ये right side पर देखिए. In the right side of the home tab, the editing group have the find, replace, and select option. When we go for this, we go for the editing group, and then we have the navigation panes as well. First, we have to go for this. Okay? Find पे जाकर जब हम अब इसके क्लिक कर देंगे फाइंड पर, यहाँ पर आ जाएगा आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है. मैंने लिख दिया आर फाइंड करना है. ठीक है. वी आर गोइंग टू पार्क. देखा यहाँ पे जैसे ही मैंने आर लिखा, ये आपका यहाँ पे हाईलाइट हो गया वर्ड के अंदर कि आर कहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. ये हाईलाइट होकर आर यहाँ पर आ गया और इसके पास यहाँ नीचे आपके पास रिजल्ट्स में ये पूरी लाइन आ गई जो कि हमने इस पैराग्राफ में लिखी होगी. राइट. मैं आपको दोबारा एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ okay, I'm going for is. When I go for is and I'll see, देखिए यहाँ पर देखिए आपको इसका 3 ऑप्शन शो कर रहा है. इस यहाँ पर है I is very intellectual. ये हमारे पास ग्रामेटिक मिस्टेक थी, लेकिन हमने इसको क्योंकि करेक्शन करनी थी इसलिए हमने is लिखा था, वरना करेक्ट वर्ड होता है I am very intellectual, I am very intelligent, same word. Okay. So whenever we write anything in the find navigation pane, so you can see the highlighted is option in your paragraph or in your document. जो भी हमने लिखा होगा यहाँ पे जहाँ जहाँ is आ रहा है, हालांकि लिस्ट का वर्ड लिखा हुआ है लेकिन लिस्ट के वर्ड में IS साथ आ रहा है,
तो इन्होंने IS को भी हाईलाइट कर दिया. ओके, दिस इज द ऑप्शन ऑफ इज. और फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर द ऑप्शन ऑफ रिप्लेस. जब मैं रिप्लेस पे जाऊंगी, यहाँ पे पहले सर्च करा हमने डॉक्यूमेंट इज, राइट, इज कर दिया, इज आ गया हमारे पास कहाँ कहाँ है. नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नेविगेशन पेन पर जाकर मैंने यहाँ पर इसको चेंज करना है. ओके, then we go for the changing of it, so we can replace it. Advanced replace form, go to replace. अगर हमें go to पे जाना, यहाँ पर गए, ये देखिए आपने इसको राइट क्लिक करके go to पे किया. यहाँ पर हमने अगर पेज पे लिखा एंटर, इधर तो पेज नंबर मांग रहा है. नो नो नो, वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस, वी आर गोइंग फॉर इज. यहाँ पे आ रहा है फाइंड, क्या करा है हमने, इज ऑप्शन. और रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस हमने करना है एम से, एम. तो हमने एम लिखकर रिप्लेस ऑल करना है, तो ऑल पे आ जाएगा. अगर एक जगह रिप्लेस करना है तो वो यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा. यहाँ पर एम लिखा हुआ आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे. किस तरीके से, इसको इग्नोर करेंगे यहाँ से. सबसे पहले हमारे जहां पर इज लिखा था ना, इन्होंने सबसे पहले वहां चेंज किया. अगर मैं रिप्लेस ऑल करती तो जहां जहां इज था वो सब जगह से हटा देता. राइट, let me do it again and I'll show you how. For example, ये देखिए m आ गया, मैंने m लिखा था, इन्होंने इस लिस्ट को छोड़कर जहां जहां आइटम इज, यहाँ पर भी इज था, इसको m कर दिया, यहाँ पर भी m कर दिया. I am very intellectual, right? किस तरीके से होगा, I'm doing it again. हमें क्या करना होता है, अगर हमें कोई भी चीज फाइंड करनी है और रिप्लेस करनी है, सबसे पहले तो अगर मैंने एम्बेरस लिखा है, मुझे एम्बेरस फाइंड करना है, मैंने फाइंड पे जाके लिख दिया एम्बेरस्ड. Okay, let me write with the correct spelling. ठीक है, एम्बेरस लिखकर सर्च किया तो एम्बेरस जहां पर भी होगा वो वर्ड आ जाएगा हमारे पास. राइट, एक मिनट, अब आएगा. We have to write the correct spelling. Got it? ये दोबारा दिखाइए, ये आपने कैसे खोला? ये मैंने होम टैब पर जाकर फाइंड पे जाकर इसको क्लिक करा तो ये वाला नेविगेशन खुल गया राइट लेफ्ट पर मेरे. यहाँ पे मैंने एम्बेरस लिखा तो ये एम्बेरस को सेलेक्ट कर दिया उन्होंने. ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद एम्बेरस में अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, व्हाट आई विल गो फॉर इट. जी बोले बोले. मिस कहीं से शोर आ रहा है बहुत, कहीं से शोर आ रहा है बहुत. ओके, एवरीवन म्यूट योर माइक. देखिए एम्बेरस्ड को मुझे अगर मुझे चेंज करना है, आपकी आवाज क्या आ रही है? आई एम वेरी एम्बेरस्ड की जगह लिखूंगी आई एम वेरी हैप्पी. सो मैंने फाइंड करके एम्बेरस्ड तो कर लिया. अब मैं यहीं पर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. बेटा आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली माय डियर. मैं होम टैब पे जाके रिप्लेस पे ऑप्शन पे क्लिक करके एम्बेरस्ड की जगह मैं यहाँ रिप्लेस विथ लिख देती हूँ हैप्पी. ठीक है, मैंने हैप्पी लिख के रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर जहाँ पे एम्बेरस्ड था वहां पे हैप्पी आ गया. राइट, आ गया, एम्बेरस्ड की जगह हैप्पी आ गया. This is the option to find and replace the word. Okay, now come to the next topic. जब हम कर देंगे इसको तो रिप्लेस के बाद हम इसको क्लोज करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जो आ रहा था रिप्लेस का ऑप्शन, ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया. फर्स्ट वाली पैराग्राफ में आपका फाइंड का ऑप्शन था. यू नो हाउ टू गो एंड फाइंड द वर्ड. यू फर्स्ट हैव टू क्लिक ऑन द home tab. You go for the find option on the right side. When you click on it, you have the navigation pane. Over here, you can write any of the word. If I am writing happy over here, the happy will be highlighted over here. If I am writing the to over here, for example, मैं to लिख देती हूँ तो to यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पर तो वो वर्ड भी आ जाएगा और वो यहाँ पर हाईलाइट भी हो जाएगा. Then I am going for the replace option. अगर यहाँ पे to हमने सेलेक्ट किया हुआ है और इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी चीज से तो यहाँ पर आपने जैसे यहाँ हैप्पी लिखा हुआ है. राइट, मैं यहाँ टू की जगह कर देती हूँ डबल टू वाला, टू TOO2. राइट, तो इसको रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, रिप्लेस हो गया. इन्होंने बोला यू वांट टू कंटिन्यू तो हमने लिख दिया नो और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया. क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू पार्क, यानी हम भी पार्क जा रहे हैं. राइट, सो यहाँ पर जो टू हमने सेलेक्ट करा था इसको हमने रिप्लेस के साथ ऑप्शन पे रिप्लेस पे जाके उसको हमने रिप्लेस भी कर दिया. राइट, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑन पेज नंबर 82. This is bullet and numbering. You all know very well bullet and numbering के बारे में.
It is always come on the paragraph option. This is the bullet option and this is the numbering option. How you do the bullet and numbering option, you all know. First, if I am going to select this one, I have selected these lines and going for the bullet option. Whenever I click on the home tab, in the home tab in the paragraph group, we click on the bullet option. We have these type of bullets over here. If you want to select any of the bullets over here, we can directly click on it. आपकी जितनी भी लाइंस हैं उनकी स्टार्टिंग में इस तरह बुलेट्स रख के पॉइंट्स आ जाएंगे. If I am going to select more about these options, Yes, I know this. Everyone knows this. I'm just giving you the now define new bullets. If I go for the new bullets, you have the symbols, you have the pictures, you have different sort of things. So when I click on the symbols, we are having this one. अगर मुझे स्टार लगाना है तो मैं इस पे स्टार क्लिक करूंगी. तो आप इस पे स्टार क्लिक करके ओके करेंगे. ये देखिए हमारे पास बुलेट जितने भी हैं वो स्टार्स में आ गए. राइट. These are the options of bullets. We can change with the symbols as well. Again, I'm selecting this one, going for the bullet and define new bullets. New bullets पे जाकर यहाँ symbols पे click करा. अब अगर मुझे इसकी जगह अब मैं कोई और से select करना चाह रही हूँ. Let me select. For example, I'm selecting the watch. मैं कोई सी भी watch select कर रही हूँ. Right? Arrow. Arrow select करूँ. Okay, fine. This one arrow. No teacher, arrow नहीं. तो फिर okay, I'm going for this one option. ठीक है, ये वाला मैं select कर रही हूँ. Right? Go for this, click on this, and then okay करेंगे यहाँ पर. ये देखिए यहाँ पे सारा option वो वाला आ गया. ठीक है, अब हम जब bullet पे जाएंगे ना तो जो जो हमने select किया हुआ होगा ना वो हमें recently used bullets में भी यहाँ show करेगा. Got it? Star भी show कर रहा है और ये भी show कर रहा है. This is the bullet option. Now go for the numbering option. If you want to, देखिए ये जो भी मैं समझा रही हूँ ये पेज नंबर 83 पे आपके पास पिक्चर पे शो हो रहा है. राइट. सो वी हैव फिनिश विद दिस. वी हैव ऑन पेज नंबर 84 हमने आपको सिंबल्स भी समझा दिया. To remove the bullet, that is so simple. You go for the for selecting this one, go for this one और यहाँ पे जाके none कर देंगे तो आपके bullets remove हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया. अब हम numbering पे आ रहे हैं. We go for the numbering option. Here we have the numbering option. यहाँ पे आपको इस तरह का 1 2 3 4 अगर सेलेक्ट करना है, इस तरह का करना है, जिस तरह का भी आप करना चाह रहे हो. रोमन में करना है, ABCD में करना है, स्मॉल और कैपिटल में, या फिर आपको ब्रैकेट्स वाले करने हैं, बगैर ब्रैकेट्स वाले करने हैं, स्मॉल रोमन्स करने हैं, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर स्मॉल रोमन. देखिए आ गया आपके पास इस तरीके से. देन आई एम अगेन सेलेक्टिंग दिस वन एंड गोइंग फॉर दिस वन ऑप्शन ABCD. So can you see this ABCD option? ये इसलिए हमारा कैपिटल इसमें आ रहा है बोल्ड में because the word is also bold. When we select it and select Control B, तो ये भी हमारा बोल्ड से हटके नॉर्मल उसमें आ जाएगा. Please mute your mic. Shanavar, mute your mic, dear. Shanavar, mute your mic. Thank you, dear. Okay, this is the option to change the numbering list. Now come to the next topic, that is symbols. Okay. Page number 86. Come on, page number 86. That is symbols. Symbols are the sign or characters that can be inserted in a Word document, such as heart, stars, arrow. That can be inserted in the format of this. For example, beta, if you want to insert any of the symbol, what will be your देखिए आप किस तरीके से सिंबल्स ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा आई एम वेरी हैप्पी और मुझे यहाँ पे हैप्पी का सिंबल ऐड करना है. आई विल गो फॉर द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे जाकर गॉट इट, गो फॉर द इंसर्ट टैब और यहाँ जाके हम सिंबल्स पे जाएंगे. जी 1 minute. I think my class is going to be end. So I'm just stopping right here. मैं दोबारा आपको ज्वाइन करवा रही हूँ, आप दोबारा मुझे ज्वाइन करें ताकि हम लोग दोबारा करें. ऐसा ना हो कि हमारा लेक्चर बीच में रह जाए. Miss, you have 15 minutes. No, my dear, I don't have. मेरी स्क्रीन पे टाइम कम शो कर रहा है. So let me go again. अच्छा मैं आपको ये चीज समझा के जाती हूँ. यहाँ पर come over here. When we go, अच्छा let me finish with the symbols and then we will go for this. ये नेक्स्ट पीरियड आपका ही है? जी नेक्स्ट पीरियड मेरा है, आप लोग मुझे ज्वाइन रखेंगे. Okay, when we go for the symbols, if you want to add any symbols of it, what we will go is we go for the insert tab and we go for the symbols options. You can see the symbols option on the right of that ribbon. इस ribbon में देखेंगे insert के right side पे आपको symbols का group दिख रहा है.
यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये सारे सिंबल्स आ जाएंगे, राइट। अगर हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स में आ रहा है स्माइली फेस तो नहीं आ रहा, सो we can search it over here. ये देखिए, आप इसको ऊपर नीचे, ये रहा स्माइली फेस, राइट। सो आई गो एंड सेलेक्ट द स्माइली फेस विद द हैप्पी ऑप्शन एंड वी क्लिक ऑन इट। तो आप देख सकते हैं, इसको क्लोज करूंगी मैं। आई एम वेरी हैप्पी के साथ हमारे पास सिंबल आ गया हैप्पी फेस का। कैन यू सी दिस? वी आर गोइंग टू द पार्क। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये लाइन लिखी हुई है गोइंग टू द पार्क। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड सम सिंबल ऑन आफ्टर दिस लाइन, सो आई एम अगेन गोइंग फॉर द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ मोर सिंबल्स पे क्लिक करूंगी। यू कैन सी सो मेनी सिंबल्स ओवर हियर। ये देखिए, ये आपके पास जो स्क्रॉल बार आ रहा है, ये आपको नीचे से ऊपर तक बहुत सारे सिंबल्स शो कर रहा है। सो लेट मी सेलेक्ट एनी ऑफ द पार्क ऑप्शन। यहाँ पे कोई ऐसा चीज नजर आए जो पार्क से रिलेटेड हो, मैं उसको इंसर्ट कर दूंगी पार्क के ऑप्शन में, राइट। लेट मी सर्च इट। नहीं, ये इसमें एरो 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 एरो। चले, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं एरो भी शो कर देती हूँ। एरो नहीं टीचर, एरो नहीं टीचर, एरो नहीं। इट्स ओके, बहुत देर से वो एरो एरो कर रहे हैं। हादी के लिए मैंने एरो सेलेक्ट करके इसको शो कर दिया, ठीक है। वी आर गोइंग टू द पार्क और एरो सिंबल आ गया। आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पे अगर आपको कोई भी फेस लगाना है, मैं जैसे इस पे कोई सी भी सिंबल्स ऐड करना चाह रही हूँ, तो लेट मी मैं स्टार बनाना चाह रही हूँ, राइट। तो रिसेंटली यूज में स्टार हमने यूज किया था। इंसर्ट करके क्लोज करूंगी, आपका एक स्टार आ जाएगा। गॉट इट? सो इस तरीके से हम ये चीज यूज करते हैं, ओके। और इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनल चीज बताना चाहूंगी। इफ यू वांट टू ऐड एनी ऑफ द shapes over here, what will we do is we go for the insert tab, we go for the shapes option, और जैसे यहाँ पर आई एम सेलेक्टिंग ओवर हियर अ बैनर ऑप्शन, राइट। मैंने यहाँ बैनर ऑप्शन ड्रॉ कर दिया, राइट। जब मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर इसके पास ये देखिए आपके फॉरन फॉर्मेट टैब आपको अपीयर हो जाता है जब भी आप कोई पिक्चर बनाते हो। इस फॉर्मेट टैब पे जाके टीचर इसके बाद जो आपका पीरियड है, उसके बाद कौन सा पीरियड है आपका? बेटा आप लोगों को डायरेक्ट मेरी क्लास के बाद उर्दू ज्वाइन करना होगा, ठीक है। सो राइट नाउ यू हैव टू ज्वाइन मी। जल्दी से मैं ये बताऊं, फिर मैं दोबारा क्लास को आपको साइन आउट करके साइन इन करूंगी। आप लोग अभी मेरे साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे मुझे, क्योंकि मैं कॉपी वर्क कराऊंगी और बुक वर्क कराऊंगी इसका, ठीक है। नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस वन विद द शेप। इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। और इसमें अंदर लिखने के लिए क्या कर देंगे हम, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग, ओके जस्ट मुझे ये समझाने थे, फिर मैं आपको अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करवाती हूँ दोबारा। यहाँ पर जाने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स है, हम अपनी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, राइट। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ हमने लिख दिया वेलकम, राइट। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था, पीछे वाले चैप्टर में। आई होप यू रिमेम्बर इट। सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर जाके होम टैब पे सेंटर अपीयर करके, और इसको हम साइज में भी बड़ा कर सकते हैं, और जैसे चाहे हम इसे मूव भी कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन ऑल्सो इंसर्ट symbols as well as we can also insert shapes in the insert tab. Okay, now please everyone, please stay with me. आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं अभी क्लास एंड करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। So please again join me, और फौरन ज्वाइन करेंगे, otherwise we will miss the book work because we have finished with the chapter. We are going for the book work, so please everyone, I am requesting you all to please again join me. Hurry up.